हेलो एवरीवन। क्लास 9 हमारा चैप्टर चल रहा था डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसके अंदर हमने ये स्टोरीज़ पढ़ी थी। अब हमारा जो आगे टॉपिक है वो टॉपिक है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मैप किस तरह से चेंजिंग हुआ है, उसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 मैप्स आपको दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 20th century was full of the kind of stories we have read about, stories true of translation or to democracy, of challenges to democracy, of military coup, of struggle of the people to bring back democracy. Was there a pattern to these stories that record both the march toward democracy and the setbacks to democracy? Let us use the basic features we noted earlier and identify democratic among different countries of the world. This is that the 3 maps shown here to take a look at these 3 maps below and find out of there was a pattern in way democracies have evolved in the 20th century. The first map depicts the countries that were democratic in 1950. A few years after the end of Second World War, this map was also shown countries from this set that had already become democratic by 1900. The second map presents a picture of democratic regime in 1975. After most of the colonies had gained independence, finally we take another leap and took look at democracy in the year 2000. At the beginning of the 21st century, as we look at this map, let us ask ourselves some questions. How has democracy merged through the 20th century? Is there a clear pattern of expansion? When did the expansion take place? In which region? तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है, ये शोज़ कर रहे हैं। ये 3 मैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर 3 मैप्स के अंदर ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, ये जो कलर है वो है 1950 की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और आपको जो रेड कलर नज़र आ रहा है ये आपकी है 1900 और 1900 से लेके 1950 तक की जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले 2 स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जिनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी की है कि किस तरह से डेमोक्रेसी पैदा हुई, बनाई गई, कैसे लोगों ने गेन की, कैसे स्ट्रगल किया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको अब मैप के अकॉर्डिंग आपको शोज़ किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनी। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो ये हमारा है 1975 के डेमोक्रेटिक मैप, जिसके अंदर जो है आपको येलो कलर जो नज़र आ रहा है ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग समझते गए, जानते गए, और जिन लोगों को ज़रूरत हुई कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि जनतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, तो उसको देखते हुए 2000 के अंदर आपको थर्ड मैप के अंदर शो हो रहा होगा कि कितनी सारे कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑल ओवर कंट्रीज़, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चुकी हैं। कुछ एक कंट्रीज़ को छोड़कर बाकी सभी जगह पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका नया टॉपिक है, फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। द बिगिनिंग these maps do not tell us much about what happened before the 20th century. The story of modern democracy began at least 2 countries ago. You may have read the chapter on the French Revolution of 1789 in the history book of this course. This popular uprising did not establish a secure and stable democracy in France. Throughout the 19th century, democracy in France was overthrown and restored several times. Yet the French Revolution inspired many struggles for democracy all over Europe. In Britain,
The progress toward democracy started much before the French Revolution, but the progress was very slow. Through the 18th and 19th centuries, series of political events reduced the power of monarchy and federal roads. The right to vote was granted to more and more people around the same time as the French Revolution. The British colonies in North America declared themselves independent in 1776. In the next of few years, these colonies came together to form the United States of America. They adopted a democratic constitution in 1787. But here too, the right to vote was limited to very few men. In the 19th century, struggle for democracy often centered around political equality, freedom and justice. One major demand was the right of every adult citizen to vote. Many European countries that were becoming more democratic did not initially allow all people to vote. In some countries, only people owning property had the right to vote. Often, women did not have the right to vote. In the United States of America, the black all over the country could not exercise the right to vote until 1965. Those struggling for democratic wanted this right granted universal to all adult men and women, rich or poor, white or black. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. और यूनिवर्सल सफर्स, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है सभी बच्चों को. दोज स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सल टू ऑल एडल्ट मैन, फॉर वुमेन, रिच और पुअर, ब्लैक एंड वाइट एंड और ब्लैक. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज. यहाँ तक द बॉक्स tells us when universal suffrage was granted in many countries of the world. तो हमने यहाँ से शुरू किया है. शुरुआत के अंदर इन फैसेस के अंदर हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी के. आप लोगों ने इसमें अभी मैंने आप लोगों को इस मैप के बारे में बताया, तो इसमें बताया कि इस तरह से लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी को गेन किया, किस तरह से अपनी पावर दिखाई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर बनवा दी. 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका जो चैप्टर हमारी हिस्ट्री की बुक के अंदर है, उस चैप्टर को हम जो है हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे किस तरह से उन्होंने स्ट्रगलिंग की थी और फ्रांस के अंदर किस तरह से क्रांति हुई थी और उस क्रांति का किस तरह से असर पड़ा था. उस सब के बारे में हम जो है हिस्ट्री की बुक के अंदर पढ़ेंगे. तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि थ्रू आउट ऑफ 19th सेंचुरी डेमोक्रेसी इन फ्रांस वॉज ओवर थ्रू. 19th सेंचुरी तक जो है भी फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन थी वो चल रही थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी और लोग और देशों के, यूरोप के और देशों के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने की वजह से ये यहाँ के जो फ्रांस के लोग थे वो भी इंस्पायर होने लगे और वो भी चाहते थे कि हमारे देश के अंदर भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाए. और ब्रिटेन के अंदर प्रोग्रेस होते हुए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पर बाद में शुरू हुई. फिर बाद में ये जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी स्लो थी और 18th और 19th सेंचुरी के अंदर पॉलिटिकल इवेंट्स रेड्यूस होते चले गए और पावर ऑफ मोनार्की एंड फेडरल लॉर्ड्स, और जो फेडरल लॉर्ड्स जो थे, मोनार्की सिस्टम था, वो उसकी पावर भी जो थी वो कम होती चली गई और लोगों को अधिकार मिला राइट टू वोट का, यानी कि वोट देने का अधिकार. इसके बाद ब्रिटेन कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1776. आप अंडरलाइन करेंगे कि द ब्रिटेन कॉलोनीज इन नॉर्थन अमेरिका. तो यहाँ से 1776 के 1776 ईस्वी के अंदर जो ब्रिटेन है उसने अपने आप को नॉर्थ अमेरिका के साइड ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम स्वतंत्र हैं. इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और आने वाले कुछ साल के अंदर, केम टुगेदर टू फॉर्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और यूनाइटेड स्टेट्स के जो अमेरिका के जो देश थे वो आपस में जुड़ गए. द अडॉप्टेड अ
कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने डेमोक्रेटिक अडेप्टेड किया, कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया 1787 के अंदर, और उनको वोट देने का अधिकार हुआ। मगर ये जो वोटिंग का जो अधिकार था, वोटिंग का जो राइट था, वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए था। 19वीं सेंचुरी तक भी लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और वो अपनी पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस के लिए ये जो स्ट्रगल था इनका चलता रहा। तो एक मेजर डिमांड ये थी कि राइट टू वोट, यानी एडल्ट सिटीजन्स के तौर पर सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। मगर उस वक्त कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जैसे कि काले लोग, गरीब लोग, वुमेन्स, इन सब लोगों को अधिकार नहीं था। फिर मतलब 1965 तक भी इन लोगों को किसी तरीके का कोई राइट नहीं था कि वहाँ की लेडीज़ वोटिंग कर सकें, वहाँ के काले जो लोग हैं वो वोटिंग कर सकें, या जो पुअर लोग हैं वो वोटिंग कर सकें। सिर्फ जो लोग पैसे वाले हुआ करते थे, सिर्फ वो लोग ही इस चीज़ को राइट टू वोट का अधिकार अपना सकते थे। और फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद लोग जो थे, जो पुअर थे, रिच थे, वुमेन्स थी, ब्लैक और वाइट थे, सब लोगों को जो अधिकार मिला, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल सफरेज। जिस तरह से इस आपको इस बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से 1893 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर, 1970 के अंदर रशिया के अंदर, 1918 के अंदर जर्मनी, 1919, तो सभी देशों के अंदर किस तरह से फ्रेंचाइज ग्रांटेड की गई, यानी कि किस तरह से उन लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज मिली। एज यू कैन सी बाय 1900 न्यूजीलैंड वाज द ओनली country where every adult had voting right. But if you go back to the map, you can see many other countries are marked as democracies by the beginning of the 20th century. These countries headed by the governments elected by a significant number of people, mostly men, and had granted political freedom in some measures. Early democracies were established in Europe, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के जो देश हैं उसके अंदर ही डेमोक्रेटिक अधिकार जो है कुछ ही लोगों को ग्रांटेड किए गए। ज़्यादातर आदमियों को यानी जेंट्स को ही राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था, अगर हम मैप के ऊपर देखें तो। एंड नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। आप लोग पढ़कर रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे।